Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, my dear students. I hope you will remain fit and fine again. This is Mehtab Ali in front of you, and today we will be talking about Mendeleev periodic table. This is my fourth most important lecture of the periodic table, in which we will be talking about Mendeleev. Dear students, Mendeleev basically gave the periodic table in 1869, and in the same year Lothar Meyer also published his periodic table in this year, but the periodic table of the Lothar Meyer couldn't get a proper attention due to some issues or due to some disadvantages or problems. After that, basically, if we talk about the classification of the element, then Mendeleev classified the 63 elements in his periodic table, and these 63 elements were called as a known element. Why we call these elements as a known element? Because these elements were discovered at that time, so they were called as a known element. इसके बाद अगर हम बात करते हैं dear students, तो the periodic table of the Mendeleev is on the basis of atomic mass. If we talk about the periodic table of the Dobryner, so Dobryner periodic table was also on the basis of atomic mass, and if we talk about the Newland periodic table was also on the basis of atomic mass. But if we talk about the Lothar Meyer classification, his periodic table was on the basis of physical properties, so he made the curve between the atomic volume and atomic mass. But let's move to the Mendeleev. So basically, Mendeleev gave his periodic table on the basis of atomic mass. Mendeleev gave the concept of the periodic law as well. Mendeleev ने जो एक लॉ दिया, उस लॉ को हम कहते हैं periodic law. जबकि उस periodic law का ये मतलब होता है बेसिकली कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट्स की स्टूडेंट्स, वो और द periodic function of their atomic mass. इसका मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज करेंगे इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, लेकिन वो प्रोडक्ट फंक्शन होंगी. प्रोडक्ट फंक्शन का जो मतलब है स्टूडेंट्स, वो हम दो मकसद में बताते हैं. एक तो प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब ये है कि द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फंक्शन. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट moral of this product function is product. The meaning of the product is repetition of the properties, repetition. So when we arrange these type of element on the basis of atomic mass in this product table, the properties will be product function, meaning that properties will be repeatable. For suppose if we talk about this is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Finally सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम आ गया, तो हम कहेंगे लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं आपस में वो सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में प्रोडक्ट फंक्शन है, यानी रिपीट इनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली रिपीट होती हैं. इसी तरह अगर हम इसके नीचे पोटेशियम रखेंगे तो हम बोलेंगे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट फंक्शन है, वो रिपीटेबल हैं, उनकी सेम प्रॉपर्टीज है, क्योंकि एक ही ग्रुप हैं और इन एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज किया हुआ है. जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज करेंगे तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रोडक्ट फंक्शन होगी. ये हमें किसने बताया? ये बेसिकली हमने मेंडलीव ने बताया हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद बेसिकली मेंडलीव ने क्या किया हुआ था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीज़ें बनाई. एक तो वर्टिकल लाइंस बनाई, जैसे मैंने वर्टिकल लाइंस ये बना के रखी हैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद इसने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाई. हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से होती हैं, और इसने बाद में वर्टिकल लाइंस का नाम रखा ग्रुप, वाइल हॉरिजॉन्टल लाइंस का नाम रखा पीरियड्स. तो इसने ग्रुप भी दिए अपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर, पीरियड्स भी दिए, और एलिमेंट्स को भी अरेंज किया एटॉमिक मास के बिहाफ पे. तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं. एक चीज़ मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा एडवांटेजेस शुरू करने से पहले, वो ये कि जो न्यूलैंड ने अपनी प्रोडक्ट टेबल दी थी ना स्टूडेंट्स, बेसिकली मेंडलीव ने उसका एक्सटेंशन किया हुआ है, नथिंग एल्स.
ही एक्सटेंडेड द प्रोडक्ट टेबल ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको मेंडलीव ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर दी, उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करके, थोड़ी चीज़ें ऐड करके, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम थे, जो एरर आए हुए थे, उनको सेटअप करके इसने अपनी प्रोडक्ट टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया 1869 के अंदर। लेकिन इसकी प्रोडक्ट टेबल के भी अंदर मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, तो ही लेफ्ट द एम्प्टी स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव का ये बहुत अच्छा काम था कि उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे तभी इन्होंने उनके लिए जगह रखी। तो दिस इज अ मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट टेबल, कि जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए ना, तो मेंडलीव ने उनके लिए एक जगह रख ली कि भाई जब भी वो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे तो हम उन एलिमेंट्स को इन जगह पे सेटअप करके रखेंगे। सेकंड मोस्ट एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट टेबल इज ही प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। मेंडलीव ने अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज हमने पहले बताई, उनका एटॉमिक वेट बताया, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई कि उसका कलर इस तरह से होगा, उसके अंदर उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस तरह से होंगी। प्रॉपर्टीज की प्रोडक्शन की थी इसने, बेसिकली प्रोडक्शन की वजह से ये उसका एडवांटेज कहलाता है। तो मैंने आपको मैंने इस चीज़ को एडवांटेजेस की लिस्ट में लगा दिया है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उस वक्त एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे ना, तो इसने उन एलिमेंट का नाम रखा था इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। इक्का का यहां पे मतलब मैं आपको सिंपली बताऊंगा, इक्का मींस नेक्स्ट वन, उसके बाद, यानी जो बोरान के बाद एलिमेंट आता है वो स्कैंडियम उसके हिसाब से, और एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आता है वो गैलियम, सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट आता है वो जर्मेनियम। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि स्कैंडियम एलिमेंट के ऊपर स्कैंडियम नाम हमने क्यों रखा। This is due to their origin from their these type of element found. So स्कैंडियम जो एलिमेंट मिला था हमें वो स्काउटलैंड से मिला, जिसकी वजह से हमने इसका नाम रखा स्कैंडियम। वाइल जो गैलियम एलिमेंट है ये एक फ्रांस का शहर है, फ्रांस का एक बहुत मशहूर सिटी है जिसका नाम है गेलिया सिटी। गेलिया सिटी से ये एलिमेंट हमें डिस्कवर्ड हुआ, ये एलिमेंट वहीं से, तो हमने इसका नाम रख दिया गैलियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जर्मेनियम की, तो ये तो नाम से ही जाहिर है कि ये एलिमेंट हमें जर्मनी से मिला था, जिसकी वजह से इसका नाम हमने जर्मेनियम रखा हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर हम प्रोडक्ट टेबल अपनी देखें तो उसके अंदर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 101 और उसका नाम होगा मेंडेलियन। ये एक एलिमेंट है हमारी प्रोडक्ट टेबल के अंदर जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 101 है, 101 101 और उसका नाम जो है वो मेंडेलियन है क्योंकि उस वक्त ये डिस्कवर्ड हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहला और मेन प्रॉब्लम वाज आइसोटोप इशू। इसने जैसे बताया कि भाई एलिमेंट्स को आप एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज करें। ओके, हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया, लेकिन मसला आया आइसोटोप में, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप इन आइसोटोप के अंदर क्या होता है कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है वाइल एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो हमें तो प्रोडक्ट टेबल एटॉमिक मास पे रखनी है ना, तो जाहिर है फिर तो हमें आइसोटोप भी रखने थे। अब हम 3 बार हाइड्रोजन तो नहीं रखेंगे, 3 कार्बन तो नहीं रखेंगे ना, 3 क्लोरीन तो नहीं रख सकते ना, ये हमारे लिए इशू होगा ना। अगर ऐसे करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट टेबल जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे और वो एक प्रॉपर सूटेबल सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट टेबल नहीं होगी। तो हमें उसको मॉडिफाई करके इसकी जो प्रोडक्ट टेबल है, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इसकी प्रोडक्ट टेबल को हमने मॉडिफाई किया हुआ था, हमने नहीं, मतलब कि मोज़ले ने, ठीक है ना। श्योर, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ये भी हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। वाल मास 1, मास 2, मास 3, तो एटॉमिक मास चेंज है। तो अब ये मसला आ गया कि हमें ये भी एटॉमिक मास 1 वाला भी रखना पड़ेगा, 2 वाला भी और 3 वाला भी, तो हम ये नहीं कर सकते ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब हम 3 कार्बन तो अपनी प्रोडक्ट टेबल में नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो
रख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोडक्ट टेबल नहीं रहेगी ना। तो हमें प्रोडक्ट टेबल को अच्छा बनाने के लिए ये चीज़ें सारी जो है ना मद्देनज़र रखते हुए हम चाहेंगे कि एटॉमिक मास के बिहाव पे प्रोडक्ट टेबल ना हो और 3 एलिमेंट्स की रिपीटेशन ना हो तो बेहतर है। सेकेंड मोस्ट इसकी जो गलती थी वो ये थी कि ही प्लेस एलिमेंट इन सीक्वेंस। इसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट को इसने सीक्वेंस से नहीं रखा, जैसे कि आर्गान और पोटेशियम है। अब जो आर्गान है डियर स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक मास है 39.9, जबकि पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। अब आप ही बताएं, सबसे पहले हम पोटेशियम को रखेंगे 39 एटॉमिक मास है, वाइल उसके बाद 39.9 वाले एलिमेंट को रखेंगे जो कि आर्गॉन है। लेकिन मेंडलीव ने ये गलती की थी, मेंडलीव ने पहले आर्गॉन को रखा बाद में पोटेशियम को रखा, तो ये उसकी खुद की गलती थी। हालांकि उसने खुद बताया कि भाई एटॉमिक मास के ऊपर रखो, लेकिन उसने खुद इसके ऊपर अमल नहीं किया, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स उसके बाद है टैलियम और आयोडीन। टैलियम का जो एटॉमिक मास है डियर स्टूडेंट्स वो 1 to 7.6 है, वाइल आयोडीन का 1 to 6.9 है। अब पहले तो हमें आयोडीन रखना चाहिए क्योंकि 1 to 6.9 है, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया कि पहले टैलियम को रखा बाद में आयोडीन को रख दिया। अब ये भी उसकी मेजर गलती थी। उसके बाद भी एक एलिमेंट आता है कोबाल्ट और निकल। डियर स्टूडेंट्स कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.9 है, वाइल जो निकल है उसका एटॉमिक मास है 58.7। अब ऑफ कोर्स 58.7 को पहले रखना है, 58.9 को बाद में। ठीक है डिफरेंस, लेकिन इतना खासा नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हमें प्रॉपर अगर अरेंजमेंट करनी है तो फिर पॉइंट के डिफरेंस को भी देखना पड़ता है। तो ये उसकी गलती थी, पहले निकल को रखना था और कोबाल्ट को बाद में, लेकिन मेंडलीव ने पहले कोबाल्ट रखा बाद में निकल रखा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स जो मेंडलीव की जो थर्ड मोस्ट मिस्टेक थी वो ये थी कि ही प्लेस एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट ग्रुप। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका जो ग्रुप था, जाहिर है मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है डियर स्टूडेंट्स वो सिमिलर होती हैं। अब मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट को फॉर सपोज कैसे, मैं आपको बता दूं कि ये सोडियम या पोटेशियम, इसके बाद आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, इसी तरह बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, बेटा मंगे कार, कैल्शियम का स्कूटर, स्ट्रोंशियम, बाप रोए, बेरियम एंड रोए मीन्स रिटर्न। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन और ईटीसी। नियॉन के बाद आता है नियॉन, ठीक है ना, हीना नीना और करीना, ऑर्गॉन और क्रिप्टॉन का एक्सरे रंगीन का एक्सरे, जीनॉन रंगीन रेडॉन। ठीक हो गया। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो इसी ट्रिक के थ्रू आप पूरी प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट्स भी याद कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स मेंडलीव ने यह भी गलती की थी कि देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, अच्छा ब्रोमीन मैं भूल गया यहाँ पे, तो आयोडीन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आती है, उसके बाद आयोडीन आती है। ये इतना ख़ास इशू नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम वैसे भी टेबल को समझ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अच्छा फिर मैंने बोरान लिख दिया ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इनकी प्रॉपर्टी सेम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। मेंडलीव से ये गलती हो गई कि फॉर सपोज मुझे मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ रखनी है ना उसकी ग्रुप में ना, लेकिन मैंने मैग्नीशियम को फॉर सपोज रख दिया किसके साथ, बोरान वाले ग्रुप के। अब ये तो गलत हो गया ना, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम के ग्रुप से मिलती है, लेकिन मैग्नीशियम को मैंने यहाँ से हटाकर इसमें इसमें रख दिया, तो ये मेरी गलती है। अब फॉर सपोज मैं ब्रोमीन को यहाँ से हटा के नाइट्रोजन के नीचे रखूंगा तो ये गलती होगी, हालांकि ब्रोमीन को मुझे यहाँ रखना चाहिए, लेकिन मैंने ये गलत किया। तो इसी तरह से मेंडलीव से भी कुछ ऐसी गलतियाँ हो चुकी थी जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी जो है वो मसाइल आ गए थे। फाइनल आगे जाके जो मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल थी ना स्टूडेंट्स, उसको आगे जाके किया गया था मॉडिफाइड। व्हाट? मॉडिफाइड। मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत चेंज करके जो चीज़ें गलत थी उनको ठीक करके फाइनल प्रोडक्ट टेबल जो है ना वो पब्लिश की गई थी। मोज़ले मैं आपको बताऊंगा 1913 के अंदर, 1913 के अंदर एक सेंटेंस आता है मोज़ले के नाम से, वो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट देता है हमें, और उसके अंदर जो उसका बेस होगा वो एटॉमिक मास नहीं लेकिन एटॉमिक नंबर होगा। आई होप कि इसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में वो बता दूं कि अगर इन चीज़ों को हम समराइज़ करें और ये सोचें कि इन केस अगर हम एटॉमिक मास को रखें भी, इन एटॉमिक मास के बिहाफ में हम अरेंजमेंट करें भी एलिमेंट्स की, तो क्या होगा। तो फिर मैं आपको पहले बता दूं, कल वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एटॉमिक मास है ना, ऐसे ही बता रहा हूं, एटॉमिक मास है ना उसके अंदर रेगुलर चेंज नहीं आती, ठीक है ना। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरान है, ये कार्बन है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसका एटॉमिक मास होगा, अच्छा ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है शायद 7, इसका एटॉमिक नंबर 3 है ना, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है ना। इसका मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि नोबेल गैसेस के बारे में हम बात फ़िलहाल नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और नीचे मैंने मास लिखा हुआ। अब देखें ये 3, 4, 5, 6, 7 एक सीरीज़ है, एक रेगुलर इंक्रीज है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब यहाँ पे देखें 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, 10 के बाद 11 आना चाहिए लेकिन 12 है, 12 के बाद 13 आना चाहिए लेकिन 14 है, 14 के बाद 15 आना चाहिए लेकिन 16 है, 16 के बाद 17 आना चाहिए लेकिन 18 है। तो ये रेगुलर इंक्रीज नहीं है एटॉमिक मास के अंदर, तो हमने इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ भी गलत है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, वो एटॉमिक मास के बिहाफ पे नहीं करेंगे, वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे करेंगे। अगर एटॉमिक मास के बिहाफ पे करेंगे, भी देखें सोडियम है ना, उसका एटॉमिक मास है 23, वाला एटॉमिक नंबर है 11। अब आप 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 23 की नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, एटॉमिक नंबर की होती है। इसका भी रीज़न है जो कि मैं आपको आस्ते आस्ते आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि एट द टाइम सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। ठीक हो गया। तो आई होप यू विल बी गेटिंग द होल बेनिफिट फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ जो आप लोगों को समझ में ना आई हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में किसी भी वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल बी गिविंग यू प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Stay blessed.